ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ? ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਮੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ जो भी है, लेकिन वो वक्त गुजार दी है एंड उन्होंने अच्छा होता है। हमारी एक नहीं हो रही, वो तीन तीन करके घूम रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली इनकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं भी सोच रहे हैं, बस पहला तो हो गया, दूजा भी हो ही जाएगा। तुम्हारी शादी हुई है पहले? कैसा लगा मेरा मजाक? जिन स्टार्स की आप बात कर रहे हैं, ये तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक टाइम पीरियड तक ये चलती हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा डिजिटल के साथ मैं हूँ अक्सर सलीम। तो आज हमारा बहुत ही मज़ेदार का सवाल है, लोग ये दो दो तीन तीन शादियाँ क्यों करते हैं? आइए इस सवाल को लोगों से पूछते हैं कि क्यों करते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शेर अहमद। शेर अहमद, क्या काम करते हैं? कपड़ों का, अबाया वगैरह, दुपट्टे वगैरह सेल करते हैं। अच्छा, मुनासिब कीमत पे के? मुनासिब कीमतें हमें नहीं मिलती, हम आगे कैसे देंगे? जो बच्चा है उसे दे देते हैं, जो कहा कहता है कोई माड़ा तगड़ा देख लेते हैं, माड़े के साथ माड़ा रेट लगा ले, जो तगड़ा हो जिसके पास होते हैं हम उनसे फिर मुनासिब रेट लें, उनसे भी ले लें। पता कैसे चलता है कि ये बंदा तगड़ा है और ये माड़ा है? जैसे कि आपने अभी सुर्खी वगैरह मेकअप वगैरह किया, पता लग गया इसने पैसे खर्चे अपने आप पर, ठीक है, ये तगड़ा है। ठीक है, जो माड़ा है, जो बेचारे ने मुँह हाथ भी नहीं धोया होता, उसको फिर हम मुनासिब दे देते हैं। मतलब जिन्हें भी कोई चीज़ लैनी है ना, मुंह हाथ धो के घटा मिट्टी माल के आवे, मुनासिब रेट ते मिले। रेट मुनासिब दे, जन्म चेहरा जो होगा ना वो सारे को देते हैं। अच्छा, मैं दसो कि लड़कियां ज़्यादा तंग करदियां ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਂਟੀਆਂ? ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀਆਂ 1993 ਵਾਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੈਸੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਜੀਣਾ ਮੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਰੋਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੰਡ ਮਾਰਤੀ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ। ਜੇ ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਡੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਹੀ ਲਵੇ ਕਰੇ, ਲਵ ਹੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਾਰੇ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, कर लेंगे ऐसी भी शादी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो एक्ट्रेस हैं हमारे पाकिस्तानी, ये दो दो तीन तीन शादियां क्यों करते हैं और इनकी शादियां जो होती हैं वो इतनी देर तक क्यों नहीं चल पाती? हमारी एक नहीं हो रही, वो तीन तीन करके घूम रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली इनकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपस में, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ना एक दूसरे को टाइम दे पाते हैं। सेलिब्रिटीज़ हैं, कभी कोई विज़िट वीज़ा पे कहीं जा रहा है, कभी कहीं कोई जा रहा है, ये वो, तो और मतलब सोच नहीं मिलती इनकी आपस में ना। और कहना तो नहीं चाहिए, फिर एक्स्ट्रा अफेयर्स जो होते हैं तो ये रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो 6 माह 7 माह बाद फिर अगला पार्टनर ढूंढ लिया इन्होंने, यही काम है इनके। तो क्या वो, आपका क्या राय है कि वो क्यों नहीं निभा पाते रिश्ता? दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, उसके साथ भी इख्तलाफात, और फिर पहली शादी को लेकर बातें होती है कि आपने उसको छोड़ दिया, फलां फलां 100 चीज़ें निकल आती हैं। आपका क्या कहना है? बात तो यही है कि असल में
बेकदरी करते हैं औरतों की, मुझे पता है। नहीं बेकदरी नहीं करते। देखिए मुझे भाई ना पहले ही जो आपने कहा कि वो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, कभी कहीं जाना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, तो वो टाइम देते एक दूसरे को। एक बात बताएं मुझे, औरतों की बेकदरी कहाँ से आ गई? अगर औरत छोड़कर चली जाए मर्द को तो फिर और ज़्यादातर अमूमन बेकदरी आ गई। नहीं, अमूमन औरतें नहीं छोड़ती मर्दों को। आपने कहा है औरतों की बेकदरी करते हैं, अगर औरत छोड़ के चली जाए तो फिर किसकी बेकदरी? फिर तो एक औरत है, मेरी बात सुने, वो एक बंदा उसकी इज्जत रिस्पेक्ट करता है। औरत सबको मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट, ठीक है? उसको भूखे रख लो, भले मार लो, पीट लो, जो भी है उसको रिस्पेक्ट चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है अपने हस्बैंड का, और ये चाहिए होता है कि जो मेरा है ना वो मेरा ही है, वो किसी और के पास ना जाए। अगर एक बंदा आपको छोड़ के दूसरी औरत के पास जा रहा है, आपका एक बेबी है, मतलब 100 चीज़ें, जैसे कि आप शोएब मलिक की भी स्टोरी देख सकते हैं, क्यों शादी की, उनकी अच्छी लाइफ चल रही थी, आप वो सारी चीज़ें देखें ना। देखें अभी लास्ट टाइम मैं जब फेसबुक यूज़ कर रहा था ना, तो अपना एक चैनल है डेली पाकिस्तान, नाम मुझे अब उनका याद नहीं है, वो यही बात कर रहे थे कि अपना एक वो फ़हद मुस्तफ़ा साहब हैं जो एक चला रहे हैं, कुछ शो चलाते हैं, नाम मुझे उनका भी याद नहीं क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ वो सब कुछ देखने में। तो वो कह रहे थे कि ये बने हुए रिश्तों वाली आंटी, जब वो वहाँ पे गए, वो शोएब मलिक साहब हो गए, उसके बाद जो उनकी जो न्यू मिसेस हैं, जो न्यू आई हैं, क्या नाम है उनका? सना खान, आई थिंक इस तरह कोई नाम, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी, दोनों मिले हैं वहाँ पे, गपशप हुई है। और एक और बात सुनने में आई है कि शोएब मलिक साहब ने कहा था कि अगर वो शो में आएंगी तो मैं आऊँगा, अगर मतलब मुझे आपने बुलाया तो उनको भी साथ बुलाएं अपने। हाँ, एक मॉर्निंग शो था उसमें ये सारी। नहीं, मॉर्निंग शो नहीं था, ये फ़हद मुस्तफ़ा शो करते हैं जहाँ ये मोबाइल बांट रहे हैं, मोटरसाइकिल्स बांट रहे हैं, जीतो पाकिस्तान में। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਆ ਲੋਕ 3-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? 3 शादियाँ? 3-3 4-4 ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਸ, पहला तो हो गया, दूजा भी हो ही जाएगा। तुम्हारी शादी हुई है पहले? मजाक कैसा लगा मेरा? कैसा लगा मेरा मजाक? झूठ बोल रहे। लगता है आपको मेरी शादी हुई है? नहीं, ज़रूरी नहीं है किसी के माथे के ऊपर लिखा हो मेरी शादी हुई। नहीं, मेरी तो नहीं हुई वैसे। आपकी हुई है? हाँ, मेरी हुई है। हुई है, फिर मैं भी नहीं सोच भी नहीं सकता, रहने दो फिर। क्या? हाँ, शादी का अच्छा, मेरी हुई है तो फिर आप सोच भी नहीं सकते, अगर नहीं हुई होती तो फिर सोच सकते था। क्या सोच सकते थे? शादी का। अच्छा, मुझे देख के आपने सोचना था कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं, हैं? जी। वजह क्यों? ऐसा क्या है इस बात में, ऐसा क्या है? What about that? You know SL about saying family for the 1 days. You know? Yes. अच्छा, तुमसे बात ना करना वो ही है, मुझे समझ आ रही है, तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, बस तुम जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई टैलेंट वगैरह है, कोई शायरी, कोई सिंगिंग? Singing है ना। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਯਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਗੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਸਾਤੋਂ ਕੁੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਤੋਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਰ ਭਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਐ, ਨੀ ਤੂੰ ਗੇਰੀ ਰੂਟ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰਦੀ, ਨੀ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਸ ਤੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ ਜੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਤੇਰੇ मैं दस रहे ਕਿਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੱਚ ਕੇ, ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਬੀਬਾ ਜੱਜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਐਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਫੇਲ ਹੋ ਜਨੇ ਆਪਾਏ ਮੱਥੇ ਗੋੜੀਏ, ਹਰਦੀ ਅਟਾਈ ਨਾ ਤੂੰ ਅਟੇ ਗੋੜੀਏ, ਕਰਨਾ ਸਵਾਦ ਸਾਡੀ। नहीं, यहाँ नहीं कह सकता। जिन स्टार्स की आप बात कर रही हैं, ये तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। आपने मोस्टली देखा होगा कि एक टाइम पीरियड तक ये चलती हैं, उसके बाद फिर ये दोबारा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उनमें ये आम है मेरे ख्याल से। पहली शादियाँ अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से करते हैं, फिर उनको छोड़ के फिर आगे भी करते हैं, अपनी पसंद से, मर्जियों से शादियाँ करते हैं, अपने घरों को तोड़ते हैं। इनके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मैं इसको ये समझता हूँ कि जो मर्द होते हैं ना, उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं सिंसियर और कुछ होते हैं ठरकी टाइप। तो कुछ शादी के बाद जो है वो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं, लेकिन मेरा अपना ज़िंदगी का एक निचोड़ है कि एक पर्सन जो है ना ज़िंदगी में वो इनफ होता है इंसान को,
ठीक है। अगर आपने किसी एक से शादी की है तो आपकी हर तरह की ज़रूरत और हर तरह की, जैसे एक फ्रेंड की रिश्ते से बात कीजिए, एक बीवी के रिश्ते से बात कीजिए, तो वो एक पर्सन आपको इनफ होता है। उससे आगे जो लोग मुंह मारते हैं वो ठरकी कहलाते हैं मेरी निस्बत, मेरे ख्याल में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने लोगों की बातें सुनी और उनका मानना ये था, कहना ये था कि ये लड़का लड़की एक दूसरे की अट्रैक्शन के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं और ये शायद फेम लेने के लिए बिलोंग करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि ये सेलिब्रिटीज़ जो होती हैं ये दूसरी शादी इसलिए करती हैं क्योंकि इन लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती है। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, इनके पास टाइम बहुत कम होता है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, इस वजह से एक दूसरे को समझ नहीं सकते, शायद इस वजह से इनकी तलाक़ें होती हैं और इनके घर टूटते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।